अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज़ कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर द चार्ज एंड एनर्जी एज वेल, एंड वी हैव अ बेसिक फार्मूला. What is the basic formula? We studied the formula Q equals to CV. That is the basic formula which shows the charge storage on a capacitor with applied potential V. So what is C? C is called capacitance of a capacitor, that having the formula C equals to Q by V. ये इसका फॉर्मूला है. दैट इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू फॉर एनी कैपेसिटर, बट इट डिपेंड्स ऑन physical parameters of any capacitor. What are the physical parameters? We have studied that C equals to epsilon naught epsilon r area divided by D. So these are physical parameters. Medium, area of the plate, and D is the distance between the plates. So it is a medium dependent and physical parameter dependent formula for capacitance of a capacitor. There are number of MCQs we discussed in our lectures regarding capacitance and capacitor. Now today we are going to discuss the combination of capacitors. When we have a circuit in which we have two or more number of capacitors are attached, either in parallel combination or in series combination. So how can we calculate the effective capacitance or total capacitance in a circuit? How can we calculate the total charge, जिसे हम एक इफेक्टिव वैल्यू कहते हैं कि अगर 2 या 3 4 कैपेसिटर्स लगे हों तो हम उन सब के लिए एक इफेक्टिव या टोटल वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं. सो देयर इज़ अ मेथड, एंड कीप इन माइंड दैट द मेथड ऑफ कैलकुलेशन इज entirely opposite to the calculation of equivalent resistance which we studied or you have been studied in second year class or in 10th class. How can we calculate the equivalent resistance? So that is opposite to the calculation wise. So what is parallel combination? Basically we know that in our house appliances all the devices are connected in parallel combination, because every bulb, every fan, every LED, every TV, ठीक है, every socket, every connection has its own switch for on and off. हमने देखा आपके घरों में भी आपने देखा होगा कि हर स्विच के लिए, हर सॉकेट के लिए आपका एक इंडिविजुअल स्विच होता है जिससे आप उसको ऑन और ऑफ करते हैं. इट मीन्स दैट इफ वी हैव अ पोटेंशियल सोर्स, मीटर से हमारा एक पोटेंशियल सोर्स आता है, ठीक है, तो हर हमारी डिवाइस उस पोटेंशियल सोर्स के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होती है. सो इन दिस केस वी हैव अ पोटेंशियल सोर्स V and we have 3 capacitors named as C1, C2, C3. So these capacitors, you can see that the one terminal of all the capacitors is directly connected to the potential source, and the other one is directly connected to the other side of the potential source. That is the symbol for battery, a DC source. Battery हमारा एक DC source होता है. DC stands for direct current, ठीक है. So that makes a parallel combination. Every device is connected directly to the parallel. जैसे आपके पास बाइक्स जा रही हो एक दूसरे के साथ पैरेलल जा रही हो तो आप उसे बोलते हैं दे हैव अ पैरेलल पाथ, ठीक है. तो पैरेलल में अगर कोई एक रुक भी जाए तो बाकी 2 नहीं रुकते, ठीक है. ये एक प्रॉपर्टी हो सकती है कि एक अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को अगर लें तो कोई एक इलेक्ट्रॉन रुक जाए तो बाकी इलेक्ट्रॉन नहीं रुकते, दूसरे पाथ से वहाँ वो जाते रहते हैं. इसी तरह हमारे घरों में अगर एक डिवाइस खराब हो जाए तो बाकी डिवाइसेस तक करंट जा रहा होता है, ठीक है.
इसी यही पैरेलल कम्बिनेशन की प्रॉपर्टी है। इफ वन डिवाइस इज ऑफ बाय सम मीन अदर ऑल डिवाइसेस आर इन वर्किंग, तो हर डिवाइस वर्किंग में होती है। तो अगर मैं कहूँ कि ये कैपेसिटर यहाँ से बर्न हो गया है तो बाकी भी बंद हो जाए, ऐसा नहीं होगा, बाकी अपना काम करते रहेंगे। सो दैट इज नेम्ड एज parallel combination. So according to the basic formula, when we have applied potential, there will be a charge storage. इन सब पे चार्ज स्टोरेज होगी। अब आपने यहाँ एक माइंड में रखना है प्रॉपर्टीज को कि अगर हम कहें कि इस पे Q1 चार्ज है, इस पे Q2 है और इस पे Q3 चार्ज स्टोर हो गया बाय द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल। अब रजिस्टर्स में आप पढ़ते थे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर डिवाइस क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड होती है तो जो इसका पोटेंशियल होता है वो हर डिवाइस पे वही अपीयर होता है, क्योंकि चार्ज कब स्टोर होगा? पोटेंशियल की वजह से। अगर हम तीनों के लिए अलग-अलग इक्वेशन लिखें कि Q1 इज प्रोपोर्शनल टू V1, Q2 इज प्रोपोर्शनल टू V2, Q3 इज प्रोपोर्शनल टू V3, तो सोर्स तो एक ही है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसी वजह से हर एक डिवाइस पे, हर कैपेसिटर पे एक ही पोटेंशियल अपीयर होगा। पैरेलल में ये प्रॉपर्टी होती है कि पोटेंशियल विल सेम फॉर ऑल द डिवाइसेस। V1 मस्ट बी इक्वल टू V2 मस्ट बी इक्वल टू, सबको V का नाम दे देते हैं, लेकिन चार्ज विल स्टोर डिफरेंटली, क्योंकि हर एक के लिए अपना पाथ होगा। ठीक है, हर एक अपने पाथ से कनेक्टेड होगा। ठीक है, यहां से इस पोटेंशियल की वजह से कुछ चार्जेस यहां से मूव करेंगे, वो इसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इधर जाएंगे, कुछ इधर चले जाएंगे, फिर वो इसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इस पे स्टोर होंगे, फिर वो यहां चले जाएंगे, फिर वो इसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग यहां स्टोर होंगे। तो वो जो चार्जेस हैं वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग स्टोर होते हैं। ठीक है, इसी वजह से चार्ज विल स्टोर डिफरेंटली। इफ वी हैव टू कैलकुलेट द नेट चार्ज, net charge Q, so that will be equal to sum of charge stored on all the capacitors Q1 plus Q2 plus Q3। अब बेसिकली इसी इक्वेशन को यूज करेंगे और हम Q1 की वैल्यू पुट करेंगे, यहां Q2 की पुट करेंगे, Q3 की पुट करेंगे। कैसे पुट कर सकते हैं? बेसिकली Q इक्वल्स टू क्या होता है? C और V। ठीक है, तो यहां आप पुट कर दें C, यहां इसके साथ आप लिख देंगे इक्विवेलेंट, और साथ क्या पुट कर देंगे? पोटेंशियल सोर्स, दैट इज इक्वल टू। अब यहां पे आप क्या कर सकते हैं? यहां पे आप कर सकते हैं कि C1 V1 प्लस C2 V2 C3 V3, सबकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब हमें पता है कि V1 V2 V3 सब इक्वल है, तो हम सबकी जगह पे C इक्विवेलेंट इनटू पोटेंशियल इक्वल्स टू C1V C2V ये लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे? इसमें से कॉमन ले लेते हैं। कॉमन जब हम लेंगे V, तो जब V कॉमन लेंगे तो सब में बाहर आ जाएगा, तो ये V जो है ये कैंसल आउट हो जाएगा सबके साथ। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ बच जाएगा C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। सो दैट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द equivalent or total capacitance in case of a parallel combination. When we have number of capacitors are connected in parallel combination, the equivalent capacitance will be calculated by simply adding their capacitance value. अगर मैं कहूं कि हम इसकी वैल्यू 1 माइक्रोफैरेड है, ठीक है, इसकी 2 माइक्रोफैरेड है, इसकी 3 माइक्रोफैरेड है, हाउ कैन वी कैलकुलेट द इक्विवेलेंट? So C equivalent equals to 1 plus 2 plus 3, यूनिट कॉमन आ जाएंगे माइक्रोफैरेड के।
So C equivalent equals to 6 microfarad. And from the result you can clearly see that in case of parallel capacitance, ये हमारा एक रिजल्ट है एक किस्म का, यू हैव टू प्रिपेयर इट. हमारा रिजल्ट है कि इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन में C इक्विवेलेंट इज ग्रेटर देन C हाईएस्ट. हमारे सर्किट में सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? 3 माइक्रोफैरड. पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, दैट इज द लार्जेस्ट और हाईएस्ट और हायर देन द हाईएस्ट इंडिविजुअल. टोटल आंसर कितना है? 6. सबसे बड़ी कितनी वैल्यू है? 3. तो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो 3 से भी बड़ा आ रहा है. दैट इज द रिजल्ट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन. हाउ कैन वी कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस? और अगर इससे ज्यादा भी हो तो हम सिंपली यहां यूं करेंगे कि जो हमारा फॉर्मूला है C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2 एंड सो ऑन अप टू Cn. n नंबर ऑफ कैपेसिटेंस अगर हमारे पास हैं तो हम उनको सिंपली एड अप कर देंगे. ठीक है, तो हमारे पास एक जनरलाइज फॉर्मूला आ जाएगा टू कैलकुलेट द कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो दैट इज द फॉर्मूला. तो इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल आ सकते हैं. ठीक है, ये रिजल्ट हमारा जो है ये एमसीक्यू है कि रिजल्ट क्या है इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज हायर देन द हाईएस्ट इंडिविजुअल. ठीक है, न्यूमेरिकल ज्यादा पॉसिबल है. इससे आपके पास आ जाए कि आपको एक सर्किट दे दिया जाए, उसमें बता दिया जाए कि ये कैपेसिटर पैरेलल हैं. ठीक है, इनकी आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम करनी है. ठीक है, तो आप मालूम कर सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला. तो ये सर्किट सोल्यूशन में, सर्किट फॉर्मेशन में इस्तेमाल होता है. ठीक है, सो होप you have the concept of calculating the equivalent capacitance. अब हमारे पास है how can we calculate the equivalent capacitance in case of series combination. अब सीरीज में भी हम उसी तरह डिफाइन करेंगे. Let we have a capacitance of this capacitor C1, C2 and C3. अब सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन इज जस्ट लाइक अ क्यू, लाइन जिसे आप बोलते हैं. ठीक है, आप बैंक में जाएं वहां एक लाइन लगी होती है, पेपर देने के लिए इंटर होते हैं वहां लाइन लगी होती है. ठीक है, चेकअप के लिए जाएं लाइन लगी होती है. सो दैट इज द क्यू टाइप सर्किट, लाइन टाइप सर्किट होता है. इसमें हर डिवाइस डायरेक्टली सिस्टम या सोर्स के साथ अटैच नहीं होता. वो डायरेक्टली अटैच ना होने से प्रॉब्लम ये होता है कि आपके पास ये 3 कैपेसिटर्स हैं. एक कैपेसिटर की एक साइड अटैच होगी, लास्ट कैपेसिटर की दूसरी साइड अटैच होगी. ठीक है, मिड वाला जो कैपेसिटर है वो इन दोनों पे डिपेंड कर रहा होगा. ठीक, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक आपको और रिजल्ट बता दूं. इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर रेजिस्टेंस और फॉर करंट और पोटेंशियल, ये उन सब के लिए है. पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम रहता है, करंट डिवाइड होता है. ये देखें, यहां से अगर चार्जेस आ रहे हैं तो यहां अलहदा जाएंगे, यहां अलहदा जाएंगे, यहां डिवाइड होके पास आउट होंगे या स्टोर होंगे. लेकिन सीरीज में क्या है? एक ही पाथ है, जितने चार्जेस आएंगे वो यहां डिपॉजिट होंगे, इनकी वजह से यहां इंड्यूस होगा, फिर इसकी वजह से यहां इंड्यूस होगा. ठीक है, फिर सर्किट कंप्लीट हो जाएगा. क्योंकि यहां डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, यहां इंडक्शन होगी एक दूसरे पे. ठीक है, तो वो किस पे डिपेंड करेगा? वो पहले कैपेसिटर की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा हो. इसका मतलब जितने चार्जेस यहां डिपॉजिट होंगे उसी करस्पॉन्डिंग में इतने होंगे, उसी में इतने होंगे. तो सिमिलरली इन केस ऑफ, दैट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज में ये होता है कि अगर एक आपकी डिवाइस खराब हो गई है तो अगली दोनों वर्किंग में नहीं होंगी, क्योंकि सर्किट ब्रेक हो जाएगा. देयर इज नो another connection for the capacitor to operate. दूसरे कैपेसिटर के लिए कोई नहीं है, थर्ड के लिए भी कोई नहीं है. ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में कोई चीज डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती. लेकिन इसका फायदा ये है
कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू हमारे पास कहीं कम चाहिए तो हम ये इफेक्टिव सर्किट इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां ज्यादा चाहिए वहां हम पैरेलल में लगाते हैं। तो इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, चार्ज 1 will be equal to charge 2 will be equal to charge 3, all are equal to Q, क्योंकि एक ही सब रास्ता है, इसमें करंट सेम रहेगा। करंट इज ड्यू टू चार्जेस, तो करंट की वैल्यू जब सेम रहेगी तो सब पे जो चार्ज जो स्टोर्ड है दैट विल इक्वल। ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। सो ऑल आर नेम्ड विद कैपिटल क्यू, बट पोटेंशियल विल डिवाइड। इस पे पोटेंशियल और होगा, इस पे और होगा, इस पे और होगा। क्यों और होगा? क्योंकि ये इसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा। इसकी कैपेसिटी अगर और है तो इस पे और चार्ज स्टोर होगा। इसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डिवाइस पे पोटेंशियल ड्रॉप होता है। अगर ये एक ही वैल्यू के हैं फिर तो वैल्यू एक रहेगी, पोटेंशियल इस पे भी वही होगा, इस पे भी वही, इस पे भी वही, मतलब ये वाला पोटेंशियल तीनों पे इक्वली डिवाइड होगा। लेकिन अगर इन दोनों तीनों की वैल्यू डिफरेंट है देन पोटेंशियल विल डिफरेंट फॉर C1, C2 एंड C3। तो पोटेंशियल डिफरेंट होने के लिए हम क्या लिख लेते हैं, टोटल पोटेंशियल इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 सिंपली। ठीक है, तो अब जैसे हमने यहां पे किया था कि हमने Q की जगह पे C इक्विवेलेंट V लिखा था, Q1 की जगह पे C1 V1, इस तरह वैल्यू पुट की थी इस फॉर्मूला से। यहां भी हम वैल्यू पुट कर देते हैं इसी फॉर्मूला से। तो V जो है वो क्या होगा, Q बाय C इक्विवेलेंट, टोटल चार्ज बाय C इक्विवेलेंट, दैट इज इक्वल टू Q1 बाय C1 प्लस Q2 बाय C2 प्लस Q3 बाय C3। अब जैसे यहां हमने कहा कि ये जो पोटेंशियल है सब पे सेम रहता है तो कॉमन लेंगे, इधर वाले पोटेंशियल से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉमन आने से ये बाहर आ जाएगा, बाहर आएगा तो यहां आके डिवाइड होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह यहां Q1, Q2, Q3 जो है वो कॉमन आएंगे क्योंकि सबकी वैल्यू Q के बराबर है। ठीक है, Q के बराबर है तो हम लिख सकते हैं Q ओवर C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू Q ओवर C1, Q बाय C2 and Q by C3. So similarly we cancel out the factor Q, इधर से कॉमन लेंगे, इधर आके डिवाइड होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। What was the answer? आंसर क्या होगा, 1 ओवर C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 ओवर C1, 1 ओवर C2, 1 ओवर C3. So that is the answer for parallel combination to calculate the equivalent capacitance। यहां आपका आंसर 1 ओवर में आएगा। लेकिन इसमें एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि जैसे अगर हम इसी एग्जांपल को अप्लाई करें 1, 2 और 3 वैल्यूज़ को, इसकी 1 माइक्रोफैरड ले लें, इसकी 2 ले लें, इसकी 3 ले लें, हाउ कैन वी कैलकुलेट द आंसर। ठीक है, तो आंसर आपका देखेंगे ये होगा कि आप 1 ओवर C लिखेंगे इक्विवेलेंट 1 ओवर 1 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 3, इन सब का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम बनता है 6। ठीक है, तो 1 ओवर C इक्विवेलेंट इक्वल टू 6, एलसीएम आया यहाँ क्या आ जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 2, सो 1 ओवर C इक्विवेलेंट इक्वल टू ये कितना बन जाएगा 9 और 11, 11 बाय 6, इसको भी उलट करेंगे, इसको भी उलट करेंगे, so C equivalent equals to 6 by 11 is the answer। ये हमारा आंसर बनेगा। एंड में आपने इसको इन्वर्ट लाजमी करना है क्योंकि 1 ओवर में आंसर नहीं चाहिए, हमें इक्विवेलेंट में चाहिए। तो इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे तो दोनों वैल्यूज इन्वर्ट हो जाएंगी। अगर न्यूमेरिकल में आता है अक्सर तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको रॉन्ग कर देते हैं। सो यू कैन कैलकुलेट द आंसर बाय इन्वर्टिंग बोथ वैल्यूज। अब आप आगे फ्रैक्शन में भी जा सकते हैं, 6 को 11 पे डिवाइड करें तो आपका आंसर जो है वो 0.5 समथिंग आएगा। ठीक है, 0.55 पर भी जा सकते हैं। तो अगर आपका फॉर एग्जांपल आंसर 0.5 आता है, 0.54,
माइक्रोफेरेड में जाता है, तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा? सो दैट इज अप टू यू। आपको बता देते हैं कि इसका रिजल्ट है, जैसे यहां पे इक्विवेलेंट इज हायर देन द हाईएस्ट वन, सो इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट वन, दैट इज द रिजल्ट। अब इसमें स्मॉलर कौन कितनी वैल्यू है? 1 सबसे, हमारा आंसर उससे भी स्मॉल है, सो दैट इज द रिजल्ट फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, तो आपने इसको न्यूमेरिकल और एज अ कैलकुलेशन कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द इक्विवेलेंट, आपने इसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, इसमें आपके पास नंबर ऑफ एमसीक्यू टाइप बन सकते हैं और भी कुछ वैल्यूज। अगर इसमें एक और भी हो सकता है कि आपके पास कुछ कॉम्बिनेशन भी आ सकता है। अगर ये आपको क्लियर है तो आपको एक क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का भी बता देते हैं कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन केस ऑफ कॉम्बिनेशन, जिसमें पैरेलल भी हो और सीरीज भी हो। उस तरह के क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए देन हाउ कैन वी सॉल्व, और यू कैन सॉल्व दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं। अब हम एक सर्किट बनाते हैं जिसमें कॉम्बिनेशन दोनों आ जाएंगे। ठीक है, पैरेलल भी आ जाएगा और सीरीज भी आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल वी हैव अ सर्किट, वी हैव अ कैपेसिटर एंड वी हैव टू पाथ्स, and again we have a capacitor and we have a potential source. And you can clearly see that C1, C2, C3, C4. So what will be the value of equivalent capacitance in this case? आप देख सकते हैं इसमें क्लियरली कि यहां कॉम्बिनेशन है। ठीक है, दो कैपेसिटर्स, दो कॉम्बिनेशंस हैं C1, और अगर आप C4 को देखें तो यहां एक ही रास्ता आ रहा है। इन दोनों को हटा दें फिलहाल, इनके लिए एक ही रास्ता है। इसके लिए आप यूं कर सकते हैं कि आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं या अजम्पशन ले सकते हैं कि C1 एंड C4 आर पैरेलल। C1 इज पैरेलल टू C4, ये पैरेलल का सिंबल है, दो लाइंस आप लगा दें। लेकिन सॉरी, सीरीज कॉम्बिनेशन है, पैरेलल नहीं है, दैट इज इन सीरीज विद C4। लेकिन C2 एंड C3 आर पैरेलल। तो अगर हम इनको कोई वैल्यूज असाइन कर दें, अगर इनकी वैल्यू लिख दें 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, और वो भी माइक्रोफैरेड में, यूनिट आप के जब क्वेश्चन आएगा उसमें दिए होंगे, फैरेड एक यूनिट है। अब आपने इक्विवेलेंट निकालनी है पूरे सर्किट की, तो इसमें कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो कॉम्बिनेशन में सबसे पहले आप सॉल्व करें जो आपके पहले कॉम्बिनेशन को डिस्टर्ब कर रहा हो। इस सर्किट के अकॉर्डिंग आपका कॉम्बिनेशन सीरीज बनता है, लेकिन इसमें डिस्टर्बेंस कौन सी है? ये दो आपस में पैरेलल हैं, क्योंकि यहां पे आके पाथ करंट का डिवाइड हो जाता है, इधर और इधर। जहां पाथ डिवाइड हो जाएगा वहां हमें समझ आ जाएगी कि इट इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले हम C2 और C3 को पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। इनके सॉल्यूशन से आप देखेंगे पैरेलल का होता है कि C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C2 प्लस C3, डायरेक्ट आंसर आता है हमारा। ठीक है, तो इसके लिए हमारा आंसर क्या बनेगा? 3 + 4 7 माइक्रोफैरेड। ठीक है,
इसे सी इक्विवेलेंट कह दें आप, और सी इक्विवेलेंट 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अब इसके अलावा भी इक्विवेलेंट आएगा ना। इसका मतलब यह है कि यहां एक जनरल कैपेसिटर बन रहा है जिसकी वैल्यू कितनी है, इन दोनों की जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, इन दोनों की जगह पे 7 माइक्रोफैरेड लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो 7 माइक्रोफैरेड इन दोनों की वैल्यू है, दैट विल बिकम इन सीरीज विद C1 एंड C4। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन इन दोनों के साथ सीरीज में हो गया। अब ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन से सॉल्व होगा। तो सीरीज के लिए अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 1 ओवर सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, सीरीज में हमें पता है कि 1 ओवर सी इक्विवेलेंट 1 भी आएगा क्योंकि ये रिजल्ट भी आएगा, प्लस 1 ओवर C1 भी आएगा, प्लस 1 ओवर C4 भी आएगा, क्योंकि ये 3 अब आ गए हैं। ये एक कॉम्बिनेशन है, उसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब वैल्यूज पुट कर दें बस, 1 ओवर सी इक्विवेलेंट आएगा इधर, इक्वल टू 1 ओवर 7 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 5। अब इसका ऐसा एलसीएम ले लेंगे जो सब पे डिवाइड हो रहा हो। ठीक है, डिवाइड ना भी हो रहा हो तो आप मल्टीप्लाई कर लें। तो बेसिकली 7 5s आर 35, वो 2 पे डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो आपको ऐसा एलसीएम लेना पड़ेगा जो 2 पे डिवाइड हो। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे वैल्यूज आती हैं, अदरवाइज ऐसी वैल्यूज होती हैं जो डायरेक्टली आंसर दे देती हैं। तो इस तरह से बताने का मकसद यह है कि यू कैन कैलकुलेट द आंसर बाय दिस मीन इजीली। ठीक है, आप इससे आसानी से अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। सो दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। एक ही सर्किट में डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आपको मिल गए हैं। होपफुली यू गेट द कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो दैट इज बेस्ड ऑन ओहम्स लॉ। ठीक है, वो ओहम्स लॉ पे होगा।